Hello and welcome to the part 2 of To Do app in React. In part 1, we created the UI, edit the tasks and deleted them. In this video, we will try and see how we can edit the tasks and mark them complete. Let's get started. Let me first add any task. There you go. Now let us suppose I want to edit it. Instead of JS, I want to write the whole word JavaScript. What would I do? First, I would click on this edit button. When I'll click on this edit button, what I would want is this current task should go into the input box where I can edit it. While I am editing it, the text on the button should say edit task because I am editing the task. I'm not adding a new one. So the button should say edit task. When I am done the editing, I would click on that button. The updated task will then show up here. And the button should then again change back to add task. This is the flow that we have to design. Let's get started. So the first point was the user will click on the edit icon. Let's hop into our code, find where the edit icon is. There it is. So on clicking on the edit icon, first we'll call an anonymous function and we will have the event from React to that anonymous function, which we will pass on. We don't need these curly braces, which we will pass on to a function, let's say edit task E. Along with the event, we will pass that particular task's ID. Let's create that edit task function. Edit task. It takes 2 arguments, the event and that particular task's ID. So upon click on the edit icon, what we want the task to be displayed in the input box. Now, only that particular task on which we have clicked the edit icon. That means we need to find the task from the tasks array. And that is exactly what we are going to do. We are going to find the task whose ID matches the ID that we clicked on and brought with us to this function. So find is a higher order function. That means it will take an function. Let's call each task from the array task. Give me that particular task object where the ID matches. All right. This will, let's say, give us task to edit. Task to edit will contain the whole object, that is the task as well as its ID. However, we only want the task which we want to display in the input box. To display in the input box, we will call the setInp function and we will provide the task from the task to edit object. If you don't remember what it contains this object. And we said simply give us the task from it. What will happen so far? Let's see. When I'll click on this edit task button, this is what is happening. Alongside it, I also told you that that button should, the text on the button should change. Let's do that as well. And in order to do that, I will create a state variable. Let's call it is editing. That is whether we are editing a task or not. Set is editing. This state variable will hold a Boolean value. Whenever we are not editing a task, it will remain at false. But when we are editing a task, that is when I'll click the pencil icon, it should toggle to true. That is when I'll click the edit icon, the pencil icon, the is editing should change to true. We'll have to do that. So we'll call the set is editing and we will set it to true. Now, why do we need it? Let me just show you. The button which says add task for now. Now the text, we will render it conditionally. Curly brace because logic likh rahe hai. If the is editing is not true or if it's false, the is editing is not true. Now this syntax,
If you don't understand this, what I've essentially written is this: if is editing is false. This and this, they mean the same thing. If is editing is not true, if it is false, in that case, write add task only on the button. However, if is editing is true, that is, yes, we are editing the task, then write edit task on the button. For this purpose, we had that state variable. Let me again go back to my browser and let me show you what is happening. So far, so good. Now, when I'll click on this pencil icon, two things will happen. Yes, this will go up into the input box and the button should change. There you go. Now, yes, I will modify it to my liking. But after modifying, what I'll do? I will click on the edit task button. But when we click on this button, we have already told React what to run. On the click of this button, we have already told React to run the add task function. The add task function will run. If I click on the button right now, you will see this learn JavaScript as the second task. ये नहीं चाहिए था हमें. When the is editing is false, yes, clicking on this button should give me a new task. जब तक वो is editing state false है, तब तो मुझे ये नया टास्क ही देगा. अब चूंकि is editing false नहीं है, true है, इस केस में मुझे नया टास्क नहीं मिलना चाहिए. It should not, the clicking of this button should not give me a new task. ये हमें add task function के अंदर बताना पड़ेगा. Don't create a new object right away. अगर if is editing false है, only in that case create a new task. Right? Only in that case create a new task. कब? जब is editing false है. तो जब is editing false नहीं है, is editing true है, जब आप edit कर रहे हैं, तब क्या? जब is editing true है, यानी कि आपने इसको चेंज किया है, उसके बाद जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, तब हमें चाहिए कि ये उसी जगह पे जाके बैठे, ये उसी टास्क में जाके बैठे जहां हमने जिस के आगे वाले पेंसिल आइकन पे हमने क्लिक किया था. अब आपके पास लिस्ट ऑफ आइकन्स हो सकते हैं, लिस्ट ऑफ टास्क हो सकते हैं, उसमें से ढूंढना पड़ेगा किस पे आपने क्लिक किया था. क्या कह रहा हूं मैं? अगर मेरे पास 5 टास्क हैं और मैंने अगर थर्ड नंबर वाले को एडिट किया था, तो एडिट करने के बाद मैं चाहूंगा अपडेटेड टास्क जो है वो थर्ड नंबर वाले टास्क में ही जाए, थर्ड नंबर पे ही जाके बैठे, अपनी सही पोजीशन ले. उसके लिए कुछ ना कुछ काउंटर, कुछ ना कुछ वेरिएबल तो हमारे पास होना चाहिए, जो हमें बाद में इस बटन के क्लिक पे बताएगा कि अब इस लर्न जावास्क्रिप्ट को कहाँ जाना है. एक और स्टेट वेरिएबल हम उसके लिए ले लेते हैं. लेट्स कॉल इट एडिट आईडी. एडिट आईडी हमें बताएगी कौन सा टास्क एडिट हो रहा है, ताकि जब एडिट करने के बाद बटन पे क्लिक करें तो हम बता दें कि इस जगह जहां के बैठो जहां पे आईडी सेम है, जहां पे आईडी मैच होती है. शुरुआत में बिकॉज हम एडिट नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट एडिटिंग, सो लेट्स कीप इट टू नल. सो इज एडिट आईडी बाय डिफॉल्ट इज नल. एडिट आईडी में तभी कुछ जाएगा जब हम एडिट करेंगे. जब ये इज एडिटिंग ट्रू होगा, ओनली देन एडिट आईडी विल हैव इट्स वैल्यू. अच्छा, इज एडिटिंग ट्रू कब हो रहा था? यहाँ पे. तो यहीं पे हमें सेट एडिट आईडी फंक्शन को भी कॉल करना है. उसी टास्क की आईडी जिस पे आपने क्लिक किया था, जिसको आप आईडी वेरिएबल में पकड़ के लाए थे, उसी को यहां सेट कर देते हैं. तो जब हम एडिट कर रहे हैं, हाँ, इज एडिटिंग वेरिएबल ट्रू है, साथ साथ हमारे पास उस पर्टिकुलर टास्क की आईडी भी मौजूद है. क्या होगा इससे? इससे एडिट करने के बाद, चलिए कुछ भी लिख देते हैं एक बार.
स्पेलिंग गलत है। एडिट करने के बाद, इसको सही करने के बाद, नाउ अब हमें पता है कि इसको कहाँ भेजना है। कैसे पता? क्योंकि हमारे पास आईडी मौजूद थी इसकी। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, सारे टास्क में से सबसे पूछूंगा किसकी आईडी मैच हो रही है, उस टास्क को इससे रिप्लेस कर दूंगा। देखते हैं। टास्क एरे, टास्क एरे में थ्रू मैप किया। हर एक एलिमेंट से हम पूछेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट से हम पूछेंगे। लेट्स कॉल इट ऑब्जेक्ट। अगर उस ऑब्जेक्ट की आईडी मैच होती है जो आपके पास स्टेट वेरिएबल एडिट आईडी में आईडी रखी है उससे। नाउ ये पार्ट देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं। अगर मैच होता है तो कुछ, अगर नहीं होता है जब तो कुछ नहीं। वो जो ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज छोड़ देंगे, हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैच होता है तो हमें क्या करना है? अगर मैच हो जाता है तो हमें ये जो पुराना वाला टेक्स्ट टेक्स्ट था इसको इससे रिप्लेस करना है। ओबीजे ऑब्जेक्ट की जगह नया ऑब्जेक्ट भेजेंगे। पुराने ओबीजे में क्या है? आईडी है और टास्क है। तो हमने कहा पुराने ओबीजे में जो भी है पहले तो उसको रख दो, यानी कि वही आईडी, और टास्क में वही पुरानी वैल्यू एक बार तो आप ले आइए। लेकिन उसके बाद टास्क में अब जो इनपुट में रखा है, टास्क में अब जो इनपुट में रखा है, यानी कि आईएनपी, वो रख दीजिए। तो ये टास्क में जो पुरानी वैल्यू थी उसकी जगह नई वैल्यू को रख देगा। मैप अब ये नया ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देगा, जो कि फिर आ, हम क्या करेंगे? जो कि हम स्टेट वेरिएबल सेट टास्क्स को पास कर देंगे ताकि वो ओरिजिनल एरे टास्क्स में जाके चेंज कर दे। सेट टास्क्स क्या हुआ इससे देखिए, मैं समझा देता हूं विजुअली। कुछ लिखा हमने हमने लिख दिया लेट्स से लर्न HMTL ना। वी नो ये गलत है, तो हम एडिट आइकन पे क्लिक करेंगे। एडिट आइकन पे क्लिक करने पे दो चीजें होंगी। इज एडिटिंग वेरिएबल ट्रू होगा और इसकी आईडी एक स्टेट वेरिएबल में चली जाएगी। ये टास्क जाएगा ऊपर, ये बटन चेंज होगा। अब जब मैं इसे सही करूंगा, HTML कर दूंगा, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, टास्क एरे में हम मैप करेंगे, यानी उसमें बारी बारी सारे एलिमेंट से लूप करेंगे, पूछेंगे किसकी आईडी मैच करती है स्टेट वेरिएबल में रखी हुई आईडी से। ऑब्वियसली इसकी आईडी मैच करेगी। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास और भी टास्क होते, उनमें से किसी की आईडी मैच नहीं करेगी, तो उनको एज इट इज हम एक एरे में भेजेंगे। लेकिन इसकी आईडी चूंकि मैच करेगी, तो इसमें हम क्या करेंगे? पुराने टास्क को नए टास्क से रिप्लेस करेंगे। ये अपडेटेड ऑब्जेक्ट हम फिर एरे में डाल के भेजेंगे, और वो एरे फिर हम टास्क स्टेट वेरिएबल में डाल देंगे। चूंकि स्टेट वेरिएबल चेंज हुआ तो आपको यहाँ पे भी चेंज दिख जाएगा। चेंज तो हो गया, लेकिन अभी भी दो चीजें रह गई हैं। एडिट टास्क अब ऐड टास्क में वापस बदल जाना चाहिए। क्यों? अगर नहीं बदलेगा तो इसके बाद जब आप नया टास्क डालना चाहेंगे वो नया ना जाके इसी की जगह आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं हम? जब ये मॉडिफिकेशन हो गया इसके बाद सेट इज एडिटिंग, जिसको आपने ही फॉल्स किया था, सॉरी आपने ही ट्रू किया था, कहाँ किया था? ट्रू किया था। अब शुड इट विल ऑल्सो रिटर्न बैक टू फॉल्स। सेट एडिट आईडी, जिसमें आईडी एडिट आईडी में नल था, हमने आईडी डाली थी, से वापस से रिवर्ट करेंगे नल पे, सो दैट नया टास्क अपनी नई जगह लेके ही जाए। सब कुछ आपने रिवर्ट कर दिया ओरिजिनल पे। क्या हुआ? चलिए देखते हैं। चलिए इसको सही डाल देते हैं। HTML, लर्न HTML ठीक है, लर्न CSS ये भी ठीक है, लर्न JS, बट मुझे इसको लिखना है फुल जावास्क्रिप्ट। चलिए एडिट पे क्लिक करते हैं, लर्न जावास्क्रिप्ट।
एडिट टास्क पे क्लिक करेंगे, ये नीचे जाएगा और चीजें वापस रिवर्ट हो जाएंगी, यानी कि ये भी ऐड हो गया। और अब जब मैं नया टास्क ऐड करूंगा तो वो अपनी नई जगह ही लेगा, इट विल बी अ ब्रांड न्यू टास्क ओनली। आई होप ये फंक्शन समझ में आया। एडिट टास्क और ऐड टास्क में जो हमने एल्स वाला पार्ट लगाया वो, ये वाला ऊपर नीचे वाला पार्ट पार्ट वन में ही था, ये तो पहले से था। हमारे पास एक तीसरा आइकन भी है, कंप्लीट। नाउ मार्क एज कंप्लीट, ये जो टिक मार्क है इसका मतलब ये है कि ये टास्क हम पूरा कर चुके हैं, लाइक HTML हम पढ़ चुके हैं या CSS हम पढ़ चुके हैं। तो उस पे क्या करेंगे? इफ लेट्स से आई क्लिक ऑन लर्न HTML कंप्लीट, मुझे इस टास्क को कंप्लीट दिखाना है, मैं क्या करूंगा? इस पे एक लाइन थ्रू हो जाएगा, इसका कलर थोड़ा डलिश ग्रेइश हो जाएगा, डिनोटिंग कि ये टास्क पूरा हो चुका है। एंड टास्क जब पूरा हो गया है, इसके बाद इसको एडिट नहीं करेंगे, उसके बाद इसको वापस अनचेक नहीं कर, चलिए वो बाद में, पहले तो मार्क एज कंप्लीट यानी इस टिक मार्क के क्लिक पे हमें इसको लाइन थ्रू देना है और इसका कलर चेंज करना है। सबसे पहली चीज, नीचे आइकन पे चलते हैं, ऑन क्लिक, लेट्स कॉल इट मार्क एज कंप्लीट। जावास्क्रिप्ट रिएक्ट से लेके हमने इवेंट अनोनिमस को, अनोनिमस से इधर, और उसके साथ साथ वही ऑब्जेक्ट की आईडी, मार्क एज कंप्लीट फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम्म कोई टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं, ये कैसे पता है? देखिए इसके लिए जो हमने शुरुआत में ऑब्जेक्ट बनाया था जिसको कि हम टास्क एरे में ऐड कर रहे थे, अब इस पहले इसमें दो प्रॉपर्टीज थी, दो की वैल्यू पेयर्स थे, अब हम इसको तीन कर रहे हैं। जब जब नया टास्क बनेगा तब तब मैं उसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर रहा हूं, कंप्लीटेड, एंड बाय डिफॉल्ट इट विल बी सेट टू फॉल्स, यानी कि बाय डिफॉल्ट हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं सिस्टम को कि ये टास्क अभी कंप्लीट नहीं है, इट इज एन ऑनगोइंग टास्क, राइट। फिर जब भी किसी टास्क के सामने आप चेक पे क्लिक करेंगे, इसी बूलियन वेरिएबल को हमें टॉगल करके ट्रू कर देना है, यही बताएगा कि ये टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो उस आइकन के क्लिक पे हमने फंक्शन चलाया मार्क एज कंप्लीट, मार्क एज कंप्लीट के अंदर आके हम यही करेंगे, एरे में से मैप करते हुए हर एक टास्क या ओबीजे कुछ भी कह सकते हैं आप, जिस भी ऑब्जेक्ट की आईडी मैच कर जाएगी जिस आईडी पे आपने टिक मार्क पे क्लिक किया था उससे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर बाकी सारी प्रॉपर्टीज यानी कि आईडी और टास्क को तो कुछ नहीं करना है, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज को तो ऐसे ही ले आइए, लेकिन उसके बाद जो कंप्लीटेड प्रॉपर्टी है जिसमें फिलहाल फॉल्स है, आपको उसको फॉल्स का उल्टा करना है ना। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली ट्रू लिख सकते हैं क्योंकि फॉल्स का उल्टा ही हमें करना है, फॉल्स से ट्रू ही करना है, वापस ट्रू से फॉल्स हम नहीं करेंगे। तो हाँ, लिख तो सकता हूं, ऑल्दो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ऐसे ना लिख के क्या कर रहा हूं मैं। मैंने कहा जो कंप्लीटेड बुलियन प्रॉपर्टी बुलियन की है उसके आगे आप रखें करंट में, उस टास्क में कंप्लीटेड की जो वैल्यू है उसका उल्टा, उसका नेगेशन। करंट में कंप्लीटेड के आगे जो वैल्यू है वो है फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू ही होता है। अगेन, रख तो ट्रू भी सकते थे, ऑल्दो ये भी सही है। अगर आपको ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, यस, ड्यू टू आवर सेटअप आप इसे सिंपली ट्रू भी लिख सकते हैं। हाँ, ये सब कब? जब आईडी मैच हो रही है, अगर आईडी मैच ही नहीं हो रही है तो उस टास्क को हमें नहीं छेड़ना है, तो एज इट इज वो ऑब्जेक्ट एरे में डाल लीजिए। और अब ये मॉडिफाइड एरे हम फिर से
स्टेट वेरिएबल है ना टास्क, डायरेक्टली तो मॉडिफाई कर नहीं सकते, तो मॉडिफिकेशन के लिए सेट टास्क फंक्शन को पास कर देंगे। अभी तो ये काम कर रहा है या नहीं ये समझने के लिए ना, एक बार हम जो टास्क एरे है उसे कंसोल करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या हुआ है अभी तक, क्योंकि अभी स्क्रीन पे आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेट्स से learn HTML, okay, all right, learn CSS, this is also all right, let me open up the console as well। फिलहाल आपको जो एरे दिख रहा है वो ये है, एंड दोनों कंप्लीटेड आपको दिख रहे हैं फॉल्स है, राइट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, कोई आपको यहां डिफरेंस नहीं दिखा, नीचे भी दो एरे, दो एलिमेंट्स के अंदर दो ही एलिमेंट्स एरे में, लेकिन आप देखेंगे कंप्लीटेड यहाँ ट्रू हो गया है। एंड इफ आई डू दिस ऑन दिस एज वेल, अब आप देखेंगे दोनों ही टास्क कंप्लीट हो गए। इस केस में अब मुझे इन पे लाइन थ्रू एंड कलर देना था, वो कैसे आएगा? CSS के थ्रू आएगा, एक्सटर्नल CSS बनाएंगे। चलिए एक CSS बनाते हैं, लेट्स कॉल इट to do डॉट CSS। बनानी पड़ेगी ये फाइल, जादू से नहीं आएगी। क्रिएट यूनिवर्सल सिलेक्टर भी लगा देते हैं, ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एक क्लास हमने बनाई कंप्लीटेड, उसके अंदर हमने कहा कलर कर देते हैं थोड़ा ग्रेइश, अब नहीं, E3 E3 E3। कंप्लीटेड में जो स्पैन है, स्पैन में ही वो टास्क लिखा हुआ है आपका, इफ यू रिमेंबर। टास्क जो है आपका वो कहाँ गया, स्पैन में लिखा हुआ है, राइट। स्पैन पे आपने लगाया टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। फिलहाल अभी भी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, उसके लिए नीचे LI में मैं आया। अब यहां देखिए मैं क्या कह रहा हूं, चूंकि CSS में आपने कंप्लीटेड नाम की क्लास लगा रखी है, वो कंप्लीटेड क्लास ही मैं इस LI को दूंगा। कब? जब इस पर्टिकुलर LI के अंदर जो कंप्लीटेड बुलियन प्रॉपर्टी है वो ट्रू हो चुकी हो, यानी कि कंडीशनली हमने लगाया कि अगर ये जो LI है जिसमें इस OBJ से डेटा आप डाल रहे हैं, अगर इस OBJ में कंप्लीटेड में जो वैल्यू है वो ट्रू है, इफ इट इज इक्वल्स टू ट्रू, और यू कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस। अगर ऐसा है तब तो आप इस पे क्लास लगा दो कंप्लीटेड, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई क्लास मत लगाओ। चूंकि कंप्लीटेड क्लास लग जाएगी तो वो आपको लाइन थ्रू एंड ग्रेइश कलर भी दिख जाएगा। लेट अस सी। चूंकि हमने मार्जिन 0 पैडिंग 0 दिया, तो आप देख रहे हैं स्पेसेस खत्म हो गई। लर्न HTML, लर्न CSS, ऑल गुड सो फार। ये कलर हम थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, ज्यादा ग्रेइश हो गया, वो हम कर लेते हैं। आई थिंक ये ठीक है। हम्म, ओके, सो दिस इज डन। मैंने आपसे लेकिन कहा था कि अब कंप्लीट करने के बाद मैं इसे वापस इनकम्प्लीट नहीं शो करना चाहता, ना ही कंप्लीट होने के बाद इसको एडिट करने का कोई सेंस बनता है, राइट। यानी कि अगर मैंने किसी को, किसी टास्क को मैंने अगर मार्क कर दिया कि इट इज कंप्लीट, द ओनली थिंग आई शुड बी एबल टू डू इज, मैं इसे डिलीट कर सकता हूं, इस टास्क को, इसको एडिट नहीं करवाना है, इसको वापस इनकम्प्लीट मार्क नहीं करना है। क्या मैं इसको रिफ्रेश करूं, मार्क एज कंप्लीट होने के बाद ये दोनों आइकन्स डिस्प्ले नहीं होने चाहिए। ये दोनों आइकन्स तभी डिस्प्ले होने चाहिए जब ये मार्क एज कंप्लीट नहीं है, जब ये कंप्लीटेड नहीं है। ये कैसे करें? कंडीशनली ही हम इन दोनों एलिमेंट्स को, इन दोनों आइकन्स को रेंडर करा देते हैं। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। डिलीट वाला तो हमेशा शो होगा, ये दोनों आइकन्स सिर्फ तभी डिस्प्ले होंगे, सिर्फ तभी शो होंगे जब ये OBJ कंप्लीटेड फॉल्स है, ट्रू नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? कंडीशनली कुछ लिखना है, लॉजिक लिखना है, इसलिए कर्ली ब्रेस। अगर OBJ कंप्लीटेड ट्रू नहीं है, फॉल्स है, अगर ये कंडीशन सही है
देखिए क्या कह रहा हूं, पूरा का पूरा आइकन ही हम कंडीशनली रेंडर करा रहे हैं। एंड और जो प्रोग्रामिंग में होता है एंड, यानी कि लेफ्ट साइड भी ट्रू होनी चाहिए, राइट साइड भी ट्रू होनी चाहिए। लेफ्ट साइड ट्रू की ये फॉल्स हो, और राइट साइड ट्रू की ये आइकन डिस्प्ले हो। ध्यान से देखिए क्या लिखा है हमने। हमने कहा है ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये पूरी चीज ट्रू मानी जाएगी और इससे जो भी रिटर्न हो रहा है वो दिखाया जाएगा। अब इससे रिटर्न क्या हो रहा है, आइकन। इससे रिटर्न तो वो पेंसिल वाला आइकन ही रिटर्न हो रहा है। वो पेंसिल वाला आइकन तभी रिटर्न होगा जब ये दोनों चीजें ट्रू होंगी ना। आइकन तो ट्रू ही है, आइकन में तो कोई कंडीशन है नहीं, तो यानी कि ये पूरी चीज डिपेंड करती है इस पे। जब कंप्लीटेड फॉल्स होगा, ये बात सही होगी, तभी ये आइकन डिस्प्ले होगा। उसके साथ साथ यहां भी हमने ये कहा कि अगर ओबीजे कंप्लीटेड फॉल्स है, अगर ये बात सही है तो ही नीचे वाली बात को सही माना जाए। चूंकि इसके लिए ओबीजे कंप्लीटेड फॉल्स नहीं है, तो देखिए वो दोनों आइकन्स गायब हो गए। लेकिन अगर मैं कुछ नया ऐड करता हूं, उसमें आपको वो दोनों आइकन्स डिस्प्ले होंगे। सो ये एक बेसिक टू डू लिस्ट हमने रिएक्ट में कंप्लीट करी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन जरूर कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।